کی جو ڈرون سرویلنس ہے وہ لائیو آ رہی ہے اور جو ہماری سڑکوں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لائیو آ رہی ہے. لبرٹی چوک لائیو آ رہا ہے اس وقت. مجھے اندازہ تھا, ہم نے اپنے بچپن میں بسنت دیکھی تھی اور ہمیں اندازہ تھا کہ بسنت ایک بہت فیسٹیو موڈ ہوتا ہے. بسنت بہت جوش و خروش سے لاہور کے لوگ منایا کرتے تھے. یہ ایک پنجاب کا تہوار ہے, یہ ایک تہوار ہے which is only exclusive to پنجاب. لیکن اس کے بعد کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ وہ تہوار ہم سے چھین لیا گیا, وہ تہوار کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اور مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ ہم دوسروں کا کلچر اپناتے ہیں, لیکن پنجاب کا اتنا رچ کلچر ہے, پنجاب کا اپنا اتنے رچ ٹریڈیشنز ہیں. اور پنجاب کی زبان, پنجابی زبان ہو یا سرائکی زبان ہو یا وہ پوٹھوہاری زبان ہو, پنجاب اردو ہو, پنجابی ہو, یہ اتنی خوبصورت زبانیں ہیں. اور ہمارے بچوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جو پنجابی زبان اگر آپ خدا نخواستہ بول دو گے تو آپ کوئی بہت ان پڑھ ساؤنڈ کرو گے یا بہت بیکورڈ ساؤنڈ کرو گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر ہم نے ان کی جو لوکل لینگویجز ہیں, چاہے وہ پوٹھوہاری ہو یا وہ پنجابی ہو یا وہ سرائکی زبان ہو یا وہ کوئی بھی اور پنجاب کی زبان ہو, اس کے بورڈز ہم نے لگائے ہیں. ان بچوں کو جن کو پنجابی کا پتہ نہیں ہے, جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ پنجابی آپ نے نہیں بولنی, وہ ان کو پنجابی سے روشناس کرانے کے لیے میں نے وہ بورڈز لگائے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے جتھے پھسو مینو دسو, اور پنجابی کے اس قسم کے ہم نے جو جملے ہیں وہ لکھے ہیں تاکہ لوگ پنجابی کو اون کریں, پنجاب کے کلچر کو اون کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں, پنجاب میں بسنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے کلچر کو, اپنے ہیریٹیج کو, اپنے تاریخی ورثے کو نہ صرف سنبھال کے رکھیں بلکہ اس کے اندر ایک فخر محسوس کریں اور پرائیڈ محسوس کریں. تو پھر ہم نے سوچا کہ نواز شریف صاحب, کیونکہ ان کو بسنت کا شوق بھی ہے اور انہوں نے ان کے جو ایک ان کا زمانہ تھا یا جو ان کا دور تھا, ان کے ینگ ایج تھی, اس میں بسنت کو بہت جو زور و شور سے منایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت کلچر ہے پنجاب کا, اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اور جو نئی نسل ہے اس کو بتانا چاہیے کہ ان کا جو پنجاب ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا وائبرنٹ ہے. آپ دیکھو انڈین پنجاب میں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ دنیا میں کہیں چلے جائیں, وہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہوں, وہ کہیں وہ یورپ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, وہ بہت فخر سے اپنی زبان پنجابی بولتے ہیں, ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں. تو میں اپنے پنجابی بھائیوں اور بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بچوں کو اردو بھی سکھائیں, ہماری قومی زبان ہے. ضرور انگریزی بھی سکھائیں کیونکہ انگریزی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, نہیں ترقی کر سکتے. لیکن آپ اپنے لوگوں کو اپنی علاقائی زبانیں, پنجابی زبان خصوصی طور پہ آپ ضرور ان کو وہ سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ان کی پرائیڈ ہے, ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہے. تو مجھے پتا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بسنت لوٹ کے آئے, تو اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بسنت کی فیسٹیوٹیز, لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بسنت کو جب ہم اناؤنس کریں گے تو اس قسم کی ایک جو فیسٹیوٹی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ایک فیور ہے. آپ دیکھتے ہیں لاہور ایسے خوشی منا رہا ہے جیسے, اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے صرف لاہور سے نہیں بلکہ مجھے گجرانوالہ سے, مجھے سیالکوٹ سے, مجھے فیصل آباد سے, مجھے پنڈی سے یہ ریکویسٹس آ رہی ہیں. لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے شہر میں بھی اس کو بسنت کو منایا جائے. تو میں یہ تمام ریکویسٹ جو ہیں ان کو نوٹ کر رہی ہوں. صرف مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں پہلے اس کو ایک پائلٹ کے طور پہ ہم اس سال اس کو لاہور میں منائیں, تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اتنی پینس ٹیکنگلی, اتنی محنت سے, اتنی مائنیوٹلی ہم نے جو سیفٹی پروٹوکولز اور جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہم نے بنائے ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ
किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट का कोई एहतमाल नहीं रहेगा। तो मैं आज आपको अभी वो लाइव प्रेजेंटेशन एक देना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और बतौर कौम और बतौर एक नेशन के और पंजाब में रहने वाले सिटीजन के हमारी क्या जो जिम्मेदारियां हैं। जो बसंत का फेस्टिवल है, इट इज़ एक्सक्लूसिव टू पंजाब, और ये सिर्फ एक नेशनल या प्रोविंशियल फेस्टिवल नहीं है, इसकी इंटरनेशनल जो कॉनोटेशंस हैं, इंटरनेशनली इसको लोग देखते भी हैं, सेलिब्रेट करते भी हैं। तो पंजाब के कल्चर को दुनिया में मुतारिफ कराने का या पाकिस्तान की एक प्रोग्रेसिव तस्वीर दिखाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। तो दहाइयों से हम यही सुनते आए हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, और मुल्क एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मुल्क की मईशत जो है वो डूब रही है, और बहुत ख़तरनाक हालत में हम हैं, और अवाम घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ पे मैच भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, पंजाब में रोज़ माशाल्लाह एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें लोग थ्राइव कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग खुश होना चाहते हैं। तो मुझे आप पंजाब की माँ कहते हैं, मैं पंजाब की माँ भी हूँ, पंजाब की बहन भी हूँ, और पंजाब की बेटी भी हूँ। और जिस तरह घरों में माँओं, बहनों, बेटियों का एक फ़र्ज़ होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें सब आके खुश हों और एक सुकून का माहौल हो, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब के अवाम, जहाँ पर हमने खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए हैं, जिसमें अपना घर स्कीम है, जिसमें माशाल्लाह इस वक्त 1.25 लाख लोगों को अपनी छत, अपना घर मिल चुका है, जिसमें हम कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी ज़बान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। और उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस निल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो। लेकिन पिछले कई साल हमने देखा है कि मीडिया पे ये बात बार बार आती थी कि परफॉर्मेंस अब कुछ नहीं है, अब नैरेटिव ही सब कुछ है। और उस नैरेटिव ही सब कुछ ने पाकिस्तान को दहाइयों पीछे जो है वो धकेल दिया, और वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि उसका शायद खमियाजा भी जो हम भुगतने में या उसकी बेहतरी में भी, उसको ठीक करने में भी हमें बरसों लग जाएं। और न सिर्फ ये कि कौम ने उसका खमियाजा भुगता, बल्कि जो अब आप ये देखें कि लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज़ पे कान नहीं धरा। उन्होंने बहुत दफ़ा ये कॉल्स दी कि शट डाउन, हड़ताल कर दो और पहिया जाम हड़ताल कर दो। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लाहौर के वो इलाके जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से आके लोग आबाद हैं बेहतर रोजगार के सिलसिले में, वो वहाँ पर गए, उन्हीं इलाकों में गए इसी आस में कि लोग निकल आएंगे हमें देख के। कोई नहीं निकला, वो मायूस वापस लौट गए। तो इसके बरक्स आपने देखा, चाहे वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हों, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हों, या बसंत की फेस्टिविटी हो, हॉर्स एंड कैटल शो हो, या वो मेला चरागा हो, या वो किसी किस्म की भी, अब रमजानुल मुबारक आ रहा है, उसको भी हम एक त्यौहार के तौर पे, एक मजहबी त्यौहार के तौर पे इंशाअल्लाह ताला 30 डेज अक्रॉस पंजाब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि जो रमज़ानुल मुबारक है, जिसको जो गल्फ में रमज़ान करीम कहते हैं, और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये एक बहुत मुकद्दस महीना है जिसमें ना सिर्फ इबादत की बहुत फजीलत है बल्कि दुआओं की बहुत फजीलत है। तो हम बतौर पंजाब एक प्रोविंस इंशाअल्लाह ताला रमज़ान को भी मनाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो अब जलसे जुलूसों के कॉल्स पे कान नहीं धरते, घेराव जलाओ की कॉल्स पे कान नहीं धरते, हड़तालों की कॉल्स पे कान नहीं धरते, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों ने अब फ़र्क देख लिया है। तो लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आप देखते हैं कि वही जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, जिसको लिबर्टी चौक कहा जाता है, जिसको कभी गाली गलोच के लिए
आवाज़ें कसने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदतहजीबी के कल्चर के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि बदतमीजी करनी है तो लिबर्टी चौक आ जाओ। उसी को हमने एक ऐसे चौक में तब्दील कर दिया है जहां लोग आके अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं और अपने आप को एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ब्रीथ कर सकें। तो मतलब ये कि जब लोगों ने निकलना होता है तो लोग निकलते हैं। और अगर आपके जेल के बाहर जाके बैठने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस चीज़ पे कि जो अल्लाह ताला ने और अवाम ने आपके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी डाली हुई है, आप वो जिम्मेदारी भी अदा करें। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। तो ये कहना मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को एक बेहतर चेंज मिला है। लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत देर बाद देखी है, तकरीबन एक दिहाई के बाद लोगों ने परफॉर्मेंस देखी है, इसलिए लोग अब परफॉर्मेंस के साथ खड़े, झूठे नैरेटिव के साथ नहीं खड़े। बुनियानुल मरसूस में आपने देखा कि लोग निकले, पंजाब के अवाम ने अपने फौजी भाइयों के साथ, रेंजर्स के साथ जिस तरह से उन्होंने बयानुल मरसूस में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से फिर उसके बाद फतह का जश्न मनाया, तो इसका मतलब है कि हमारे लोगों के अंदर वो है जो एक पैशन है, एक मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए, एक जो पूरी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खुसूसन पिछले कई दिनों में जब से बसंत की तैयारी की जा रही है, उसमें अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है, अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो पहिया है वो चल पड़ा है। उसमें केटरिंग, उसमें जो छतें हैं, अंदरून